Right. So very good afternoon, everyone. Again, very warm welcome here on the Weekly Connect with us, where we everyone meet here again on a weekly basis. We discuss about our lives and anything positivity that is happening in our life. Along with that, we also discuss whatever the things that we have read from the book, and we understand each and every aspects, and then uh, digest it accordingly so that it can be molded according to your own needs, according to your own lifestyle, and then you can go ahead and apply to your life, and then come back and again do share experiences whatever you have felt it. Okay, so yeah, so definitely, so let me start with mine and then you can further go ahead. I'll call out the names. So I'll share my experience कि पिछले last हफ्ते कैसा रहा मेरे साथ, and then probably you can also add on accordingly. So my last week was very buzzing. I mean, I happened to visit IIT Kanpur campus. Yes, last year week I was not able to connect it, but then again, after coming back to home, then again recently I started my job. That was a couple of days ago. It was my first day on Thursday, and yeah, couple of more things. We are about to start complete my thesis, and you guys are couple of new students and working professionals also joined in our group, and it's a very buzzing group, and we are doing quite great. So looking forward to have some very valuable information added to your life, and then some positive impact to your life to grow further, to achieve your best version of yourself rather than competing with someone else. Just competing with your own selves, whatever you were in the previous days, and whatever you wanted to become in the next days. So that is all that I wanted to share as a positivity that happened in my life. Yeah, feel free to share about yours. So how about you, Som? How about you go ahead and talk about something, anything, couple of things that happened, very positive things about in your life in the last week. Okay, so sir, I would like to say that before last week, everything was going on a downfall in my life because the series of events which were happening were full of rejections and failures. So, since last week only, I had a very great news that I got my dream college, which I always wanted, like NITI Mumbai, and since after then there was like a drastic change in my mentality also, that I started feeling very positive about everything, and I was feeling more enthusiastic to work upon myself, upon my weaknesses, and improve upon them. So like I am feeling active throughout the day, and I am constantly doing something to better become better version of myself, and I'm like taking some very as I was quite busy, so I couldn't read the book properly, but just before coming to session I completed chapter 1 of the compound effect, and it was also quite impactful to read, and I got very much what to say, impressed. Yeah, impressed is the right word. So I got impressed by reading that first chapter. So now, yeah, I will definitely try to implement it on my life also. And what it said that in the chapter 1, that whether it is a positive or negative set of events which we do on daily basis, which are very inconsequential to notice, but in the long run they create a uh, very deep impact in our life, and the results are then very substantial to see. Absolutely. So these are the things. So yeah, Fantastic, this is. fantastic. That is definitely. Thank you for sharing your experiences. I didn't want you to speak about the book because will be Acha, talking in the next round, but that is okay. You shared it. That is a good thing. actually, my internet got off while you were speaking, so Okay, okay. I No worries, no worries. couldn't You hear. shared it quite fantastically, and it is a good thing. See, so the thing that happens, you said it from yourself, right? कि जब मेरे साथ कुछ positivity सामने से आई, तो अंदर से मैं automatically एक positive feeling आ गई. So having a Yeah, positive right. or negative mindset or a feeling, it always comes from within. ठीक है? तो यदि आपकी situations कैसी भी रहे, if you are stay strong, if you are staying strong, ठीक है? And life में ups and downs आते ही रहते हैं. ठीक है, आप जब तब तक फेलियर नहीं हो जब तक आप क्विट नहीं करते हो. फेलियर एंड सक्सेस बोथ आर पार्ट ऑफ द लार्जर सक्सेस. फेलियर से आपको सीखने को मिलता है कि व्हाट अगेन यू कैन लर्न फ्रॉम इट, एंड यू कैन नॉट रिपीट दैट सेम मिस्टेक्स अगेन.
probably you have not mistakes at all, but the efforts that you put in to achieve that success was not enough. So that you realize, and once you realize that, you again put your plans and efforts to achieve that success again. So फेलियर एंड सक्सेस, मैं एक बार एक फोटो भी शेयर किया था जिसके अंदर मैंने बनाया था कि मल्टीपल ब्रिक्स होती हैं, एक ब्रिक्स, दो ब्रिक्स, तीन ब्रिक्स, ऐसे ब्रिक्स बना के टॉप लैडर पे अपन पहुंचे, एंड वो ब्रिक्स के ऊपर नाम किसका लिखा हुआ है, सक्सेस फेलियर, सक्सेस फेलियर, सक्सेस फेलियर, एंड देन वी अचीव दैट टॉप सक्सेस. इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. ठीक है, so many congratulations on getting NITI Mumbai. It's a very fantastic college, and do very well there, do very great there. Yeah, Make thank you, sir. yourself proud, and make your family proud, and make our community proud as well. Become a very good person as well. Okay, so thank you for sharing experience. Yeah, Sahil, would you like to go next? Yeah, of course. Yeah. Actually, last week I completed my second semester examination. So, okay. Yeah. Okay, so good afternoon, everyone. Last week I completed my second semester examinations. So, last week तो पूरा chill करने में ही चला गया, relax ही कर रहा था. So, पूरे सेमेस्टर में मतलब इतना टाइम ही नहीं मिला था, इसलिए मैंने वैक्सीनेशन बुक किया और पहले वैक्सीन ही ले लिया. So, पहले मैं वैक्सीन, उसके बाद मैं मतलब काफी सारे दोस्तों को जो नहीं मिल पाया ये लॉकडाउन की वजह से और वो सब, तो फिर मैं रिलेटिव्स और उनसे मिला, और बस कुछ नया तो ऐसा नहीं है, बस रिलैक्स ही किया है पूरे वीक. Okay. So you joined our group, right? You joined our group. I contact to you. Yes. By विकास. So डेली तो मैं रीडिंग करता ही था, लेकिन मेरे विकास ने बताया था कि आप ऐसा कुछ बुक डिस्कशन होता है, तो फिर मैंने बोला कि ज्वाइन होता हूँ. So that's it. Nice. So Vikas, जो कि हमारे ग्रुप में ही है, is from Ahmedabad. He suggested कि Sahil has already read Think and Grow Rich. So he recommended his name, and then we had a very wonderful conversation, not only in reading books part, but apart from other aspects of life as well, course curriculum and further career and business opportunities, and then relationship, and then other aspects जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक साथ. And then we understand कि whole foundation क्या है, कि if you are good at your foundations, right, so everything will materialize. Whatever you think in your mind, you can perceive it. If you have a strong belief, desire and faith, you can materialize it to your world. So everything starts with you. ठीक है, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी यदि मनस्थिति बदल गई तो. और मनस्थिति कैसे बदलेगी? अपने लोगों के साथ एसोसिएट होने से. सभी लोगों के पास अच्छे नॉलेज नहीं है. सबसे बेस्ट नॉलेज कहाँ पास है? जिनके पास ऑलरेडी 70, 50, 60 इयर्स का एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट सोर्सेज आर बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है, बट हम अगेन उसमें भी सेकेंड एस्पेक्ट डिस्कस किए कि इट्स नॉट ओनली अबाउट रीडिंग द बुक्स, बट ऑल्सो हैविंग दोस 5 स्किल्स, 5 स्टेप्स, in fact one by one, to implement it in our daily life. We heard about it, right, कि पहले रीड करना है, लिसन करना है, फर्स्ट थिंग. सेकंड, उसको अंडरस्टैंड करना है. अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट सेकंड लोग सब लोग थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं. देन वी नीड टू डाइजेस्ट का मतलब कि अपने लाइफ के अकॉर्डिंगली थॉट्स, मोटिवेशन, कोट्स, एग्जांपल्स अपने लाइफ के अकॉर्डिंगली डेली लाइफ कैसे वो शेप हो पाएंगे. मेडिटेट किया, चिंतन मनन किया, डिस्कस करके, देन डाइजेस्ट किया, एंड देन सॉलिडली जाके अपने लाइफ में अप्लाई किया. Right, so these things that we are trying to do here, and apart from that, based on my own experiences in multiple other fields, I think my video just got hang, right? Okay. Apart from my other experiences from multiple other places, I'll be helping you in guiding you, in your career aspects, in your business development aspects, in your financial savings and education as well, and then in your relationship में अपने friends के साथ, अपने families के साथ, अपने spouse के साथ, जिन अपने फ्रेंड सर्कल के साथ. इनफैक्ट आप किसी कंपनी में भी जा रहे हो तो वहाँ पे अपने जूनियर्स के साथ और अपने बैचमेट्स के साथ कैसे आपको एसोसिएट होना है, क्या क्या सिंपल क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सब चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. बचपन से ये बताया गया कि सबको ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, थैंक यू बोलना है, बट अक्सर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम खुद उस चीजों को भूल जाते हैं. अक्सर भूल जाते हैं कि नेवर मिस दैट अपॉर्चुनिटी टू थैंक एवरीवन, टू ग्रीट एवरीवन. नेवर मिस दैट अपॉर्चुनिटी, इवन दैट पर्सन इज अ स्ट्रेंजर और समवन. ठीक है, तो वो सब चीजें जनरली कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं. एंड वही चीजें ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स है. फर्दर आगे जाने के बाद से फिर हम ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट कि योगा, मेडिटेशन और हेल्दी लाइफ स्टाइल की क्या इंपॉर्टेंस है. मैं अभी पिछले 2-3 सालों से एक चीजें प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ. 20 मिनट्स का मेडिटेशन सेशन, इनफैक्ट 30 मिनट्स का अलग अलग चक्रास का मेडिटेशन है. उसके अलावा 20 मिनट का 6 फेज गाइडेड मेडिटेशन है. ठीक है, उसके अंदर नोट्स बनवाऊंगा कि क्या क्या मल्टीपल स्टेजेस होती हैं,
इनफैक्ट मैंने रूपाली को सजेस्ट भी किया था आज के 2 साल पहले कि मेडिटेशन आपको किस तरह से करना चाहिए, वो आपको कैसे ओवरऑल बॉडी को कैसे मतलब हेल्प करता है. सी, आवर माइंड इज ऑन इन आवर बॉडी, लेकिन टू ड्राइव आवर बॉडी फर्स्ट वी नीड टू ड्राइव आवर माइंड. करेक्ट ना? सो पहले अपने माइंड को उस जगह पे भेजना पड़ेगा, तब फिजिकली अपनी बॉडी वहां पे जाती है. सो माइंड इज अ वेरी गुड ड्राइवर, और उस ड्राइवर को अपने को प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना बहुत ही जरूरी है. राइट. सो ये सब एस्पेक्ट्स के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. तो जनरली एवरीवन हैज सम एस्पिरेशन. किसी को जॉब चाहिए, किसी को करियर चाहिए, कोई अपनी लाइफ में बिजनेस में ग्रो करना चाहता है, कोई स्टडीज में आगे बढ़ना चाहता है, कोई रिलेशनशिप में आगे बिल्ड करना चाहता है. और उसी रीजन से कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, एंड उसी फ्रंट में हम आगे और भी बातें करेंगे एंड डेवलप करेंगे. राइट. ओवरऑल करिकुलम. So thank you, Sahil, for sharing such a wonderful experience, and I hope probably you have already gone through Think and Grow Rich. But again, केवल रीडिंग नहीं करनी है, ट्राई टू मेक दैट नोट्स एज वेल. तो सेपरेट जगह पे रखो, एंड फिर उसको आके आप अपनी थॉट प्रोसेस को शेयर भी करो कभी कभी. ठीक है. जैसे कि अभी मैंने आपको बुक सजेस्ट किया कंपाउंड इफेक्ट, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट बुक दैट वी नीड टू स्टार्ट विद, बिकॉज वो सारी चीजों का मतलब बेसिक फाउंडेशन का भी फाउंडेशन है वो. ठीक है. दैट इज द मोर्टार जो हम सबसे ग्राउंड में डालते हैं, वो छड़े. सो वहां पे आपको करना है. वो 190 पेजेस की आई थिंक बुक्स है. कपल ऑफ एक्सरसाइजेस भी होंगी जो मैंने गूगल डॉक पे क्रिएट किया है. वंस यू कंप्लीटेड दैट बुक, आई विल शेयर यू दोस एक्सरसाइजेस टू डू इट, बिकॉज दैट विल अल्टीमेटली हेल्प यू. सी, मेरा हेल्प कैसे होगा, मुझे सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा जब आप ग्रो करोगे. आपके सक्सेस, आपके ग्रोथ में, आपके लाइफ के माइंडसेट में जब ग्रोथ होगी, तो मेरा सक्सेसफुल रहेगा. सो बी दैट पर्सन. ओके. थैंक यू, साहिल, फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस. So let me go to the next Thank person. I can see Deepali here. So yeah, Deepali, please feel free to unmute and talk about anything positive happened in your life in the last week. The last week was not that interesting. Like it goes as usual as that those days. So this is not. I don't have that much something which I quote here, but I read the book and I quoted one line here that education. The summary of this paragraph is that the degree that we earn from the college is just a piece of paper. There's nothing as such. What we learn in that in at that time was the experience and the practical knowledge that you can say. So and I just want to relate one more quote that is given by the author with like when we are going to do or anything like in the job in the corporate world for the earning purpose, there we don't have to do that much type of work, that amount of work with the salary that we get. We don't like relate with the salary and the work. There's something that we go beyond that salary, because if you are going to give your 100%, or you are going to take that responsibility with accountability. There's a term like responsibility and accountability, both are different. So when you are going to take that accountability, then you are going to give, or you can what we say, अपने आप को और निखर के आओगे. This is something which I just want to quote here. कि the degree that we earn in the college life, or the one who is pursuing right now from the masters or any other educational field, this is just a piece of paper. What we here that in this platform we are going to have different points of view, because there are number of brains here. So maybe what I am thinking from just one line, it's not that much enough. Maybe you just give me some different points, some different perspective. So this is something which we have to grow, and this is the best time because of this technological digital era, or due to this pandemic we get this platform. So I think this is the best thing that obviously we are going through, to get that essence which is more important, because degree and this certificate just a pay, just literally just a pay. Absolutely. To add on more to Deepali's word, what I would like to say is that कि see, जैसे कि कोई मैकेनिकल इंजीनियर्स है, राइट. बुक्स चाहे आप आईआईटी में जाओ, एनआईटीज में, या फिर किसी प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ, सब चीजें वही पढ़ाई जाती है, सारी जगह बुक सेम ही है, राइट. बट फिर भी देयर इज अ डिफरेंस. एंड व्हाई इज दैट डिफरेंस? प्रॉब्ली यू नो दैट देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स, और वो डिफरेंस आप समझ रहे हो. इनफैक्ट दीपाली उसी डिफरेंस के बारे में बात करी. जो इंटरैक्शंस करते हैं, जो स्किल सेट सीखते हैं, जो प्रोसेस के थ्रू होके जाते हैं ना, उस प्रोसेस से आपको काफी कुछ सारी सीखने को मिलती है. फर्स्ट थिंग. सेकंड एस्पेक्ट दीपाली टॉक्ड अबाउट कि नॉलेज इज नॉट पावर. जैसे हम यहाँ पे हमेशा बात कर रहे हैं ना कि इतनी सारी चीजें सीख ली, बहुत सारी चीजें पढ़ लिया, मतलब कैंपस के अंदर बहुत सारी चीजें, मतलब घर पे किसको नहीं पता. किसी अच्छे डॉक्टर को भी बोलो, उसको ही पता है कि क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू प्लेट में होनी चाहिए. ठीक है. किसी अच्छे इंजीनियर को पूछ लो, वो को पता है कि टाइम मैनेजमेंट, मैनेजर को पूछ लो टाइम मैनेजमेंट एंड ये सारी चीजें कैसी होती है. नॉलेज सबको पता है योगा मेडिटेशन सेहत के लिए बढ़िया है. बट इज दैट हेल्पिंग यू? इज दैट नॉलेज हेल्पिंग यू? एब्सोल्युटली नॉट. See, knowledge is not power.
applied knowledge is power. Note that word. Applied knowledge is power. You need to go back and apply those knowledge in your life. Then only your power will. Definitely you will fail, and then again you will learn, and then again you will fail. But that is the part of the process, and we need to accept that. See, failure पहले पहले हम लोगों को क्या सिखाया गया कि यदि आप फेल हैं, पास यदि आपके नंबर कम आ गए, फेल हो गया तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा. That is not the definition of failure. हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इट्स ओके टू फेल. इनफैक्ट यदि आप आगे बढ़ोगे, यदि आपके पास एंटरप्रेन्योर माइंडसेट यदि आपके पास है, एंटरप्रेन्योर में बनाया जाता है कि यू फेल फास्ट टू ग्रो फास्ट. यदि आपको 10 टाइम्स सक्सेस चाहिए तो आपको 20 टाइम्स फेल होना पड़ेगा. और फेल जल्दी करो, महीने भर के अंदर फेल करो तो क्या 2 महीने के अंदर आपको 10 तो ज़्यादा उसका 50% सक्सेस मिलेगा. तो फेल फास्ट टू ग्रो फास्ट. फेलियर से अपने को डरना नहीं है. फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. मैंने जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत जगह फेल हुआ हूँ. ड्यूरिंग माई IES की प्रिपरेशंस में मल्टीपल प्लान बनाता था, हर तीसरे दिन प्लान सीखता था, हर तीसरे दिन. और मेरी ABCDEFGH पूरा Z खत्म हो गया था. मैं फिर से दोबारा AA, BB, CC ऐसा करके स्टार्ट करने लगा प्लानिंग. मैं कभी कभी ऐसा गिव अप भी कर दिया था कि मतलब मेरे से प्लानिंग नहीं होती, जबकि मैं तो प्लानिंग का एक्सपर्ट था. प्लानिंग नहीं हो पाती थी. बट अगेन आई परसिस्टेंस वो रही, वो परसिवरेंस रहा. एंड ड्यूरिंग दैट होल प्रोसेस, भले ही मेरा सिलेक्शन IES में नहीं हुआ, भले ही मेरा टारगेट अब वो नहीं है, ठीक है, भले ही वो बोला व्हीकल नहीं है डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए मैंने दूसरा व्हीकल चूज किया और अब मैं काफी बढ़िया भी कर रहा हूँ और काफी सेटिस्फाइड भी. मुझे लग भी रहा है कि मैं डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच रहा हूँ. राइट. So yeah, applied knowledge is power. Secondly, the process through which you go through, that gives you the power. And वो process बहुत ही important है. ठीक है. Thank you Dipali for sharing absolutely fantastic things. And see, हम एक पहले चीजें हमने बात की थी. I don't know whether you guys remember this or not. क्या होता है कि जो चीजें हमारे फीलिंग्स होती हैं और जो हमारा स्पोकन वर्ड्स होता है, दे गो हैंड इन हैंड. जनरली हम क्या करते हैं कि जैसा हम फील करते हैं वैसा ही बोलते हैं, लेकिन बुक में क्या लिखा हुआ था कि जो आप बोलोगे वैसा आप कंसिस्टेंटली करोगे तो आप वैसा फील करना भी शुरू कर दोगे. दैट इज द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स. दैट इज नोन एज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स. तो भले ही आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी दिक्कतें हो, लेकिन फिर भी बोलो कि टुडे इज अ ग्रेट डे, टुडे इज अ फैंटास्टिक डे, वी डिड अ वेरी गुड डे, हमें मंथ बहुत अच्छा गया. कितनी भी दिक्कतें हैं, मैंने यहीं पे मेरी मतलब जूही है, कितनी भी प्रॉब्लम आती है लेकिन चेहरे पे हमेशा उसकी मुस्कान रहती है. दैट इज अ फैंटास्टिक थिंग. यही आपको लाइफ में बताता है कि पॉजिटिविटी कैसे रखनी है. बिकॉज जब आपके पास सब कुछ रहेगा तब तो आप खुश डेफिनेटली रहोगे. आपका रियल टेस्टिंग तब होता है जब आपके पास कुछ नहीं होता है, जब आपके पास सामने चैलेंजेस होती हैं. क्या उस समय भी आप पॉजिटिव रह पाते हो? क्या उस समय भी आप मोटिवेटेड रह पाते हो? क्या उस समय भी आप डिसिप्लिन रह पाते हो? एंड वही चीजें डिफाइन आपको करती है. राइट. सो या, सो दीपाली एंड अदर्स एज वेल, कि मतलब एकदम हमेशा ऑलवेज फील कि नहीं, टुडे इज अ ग्रेट डे, टुडे इज अ फैंटास्टिक डे. डेफिनेटली बहुत कुछ हुआ, बहुत दिक्कतें होगी, लेकिन फिर अगेन दिस इज द फेट ऑफ द फॉर्च्यून. यदि कुछ मेरे मन का नहीं हुआ तो दैट इज मच बेटर. डेफिनेटली समथिंग बेटर इज गोइंग टू हैपन. सो ऑलवेज हैव दैट फेथ. फियर नहीं रखना, फेथ रखना कि समथिंग बेटर इज गोइंग टू हैपन. Yeah, Dipali shared a very good thoughts, and then we'll like to move to Juhi and Dipali. Anyone can unmute and talk about your journey in the past weeks. Share some couple of experiences. Yeah. Good afternoon to everyone. Very good afternoon. Myself Juhi Gupta. In few weeks, in few later weeks, I completed my practicals related to B.Ed and practical copies and assignments, and also I'm preparing for NET and JRF. And yeah, of course, Dipali said very well that knowledge which we acquire is not only to showing the piece of papers and degrees which we have. The actual and real knowledge is that which we show in our real life, which we applied in our real life. Just like I did, I have completed my MSc in last year, and I from botany, and if I did not do any work related to that, just like teaching, and to do planting, and to do research, as I'm interested in research, and
research work and I read research papers, so then it is useless, and then it is impossible to do further in that field. So of course, knowledge is not only which we acquire by which we acquire and to show the degrees. We have to do some work in that field. So Absolutely. thank you. Absolutely. Fantastic. Fantastic. You definitely shared a very strong point from yourself, and it is definitely going to impart in our brains. And everyone, maybe Som and Sahil and Dipali and Rupali, they can also resonate with your words. कि मतलब कैसे अपने आप को और भी एडिशनल चीज़ें भी करनी है, एंड उसको कैसे फ्यूचर के साथ प्रोसेस के थ्रू अपने को लर्न करना है. Thank you, Joey, for sharing your experiences, and definitely we wish you all the best for your further competitive examinations, and do well in that. Thank you. Awesome. Yeah, Thank you. Rupali, please go ahead. Good afternoon, everyone. I am Rupali Gupta. Uh, I am pursuing MBBS UG from SRMS, that is in Bareilly. I am in second year, and few last few weeks last few weeks, like journeys, like ups and downs, every time. Like no one's life is always going up and going down. So the main thing I have experienced in my life up till now is that what we decide to do, like we decide, like take my example. I have decided to take MBBS from 12th. So I started to prepare for NEET UG. So in that preparation, what happened to me is, it was not that smooth. Like I have doing hard work in getting results. It's not that much smooth, right? Sometimes I get positive results and sometimes I get negative results. The thing is ki, uh, these things are part of life, right? And the most important thing is ki, uh, what what we do, it doesn't what we do doesn't mean ki, we get the results. Okay, so first first we should all understand that uh, uh, that ki, Absolutely. We need uh, to continuously put our efforts rather than having failures or successes, whatever in ups and downs that are coming in our life. Right. We need to be consistent in our efforts so that कि जो चीज़ हमें लाइफ में चाहिए वो चीज़ हम अचीव कर पाए. Nice. Yeah. हाँ, Good. but the thing is ki, uh, uh, the main thing I want to tell everyone is that uh, we know everything, right? I know I have to study NCRT. You all know your goals and you all know how to achieve it. The main difference is that we can't do it constantly. Right, we can't stick on our daily routines. I want to tell it, right. The thing is, we make our plans for 1 to 2 days, 3 days, for a week, but we can't stick with it. The main reason for lagging behind in our life is only this: if we Absolutely. make a plan, then go for it, and at least achieve it. We know everything. Like nowadays, we all have in internet. We all have all the sources to achieve it. We all have expert advices in our life. We all can Google it how to achieve. We also see on YouTube. We all know everything. But the main weakness why we can't achieve our success is just only we can't stick on that things, right? Right. we Right. listen our experts, like do 8 hours study daily, and just make revise and revise and revise it. We listen it very carefully on the first day, right? We are motivated for 2 days, and on the third day we start to do matching all the things, and start to learning four things, four topics, four subjects. So these all things creating mess ups. Absolutely. And So we Rupali, can't. yeah, right. The thing is that no, कि it happens with everyone, and that is okay. It happens with everyone and that is okay. See, this is the part of life, no? And see,
इनफैक्ट अभी सोम से बात करो, साहिल से बात करो, दीपाली रिपाली या फिर जूही से बात करो, सबकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है कि मतलब प्लान बनता है लेकिन फिर फेल हो जाता है, समझ में नहीं आता करे 3 दिन का प्लान बनाया, देन अगेन वी डोंट अंडरस्टैंड कि वेदर विल बी एबल टू फॉलो इट और नॉट. इजंट दैट राइट सोम और साहिल? Right, so it happens, and it happens with everyone here. But the thing is that we need to understand, everyone is talking about the same thing, but the thing is that we need to understand these two aspects. A kickstart and motivation helps you to get motivated, but it is the discipline that keeps you going. तो आपको डिसिप्लिन तो सीखना ही पड़ेगा, हम सबको डिसिप्लिन सीखना ही पड़ेगा, एंड इनफैक्ट वही सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट? टाइम बाउंड अपने इवेंट्स होने चाहिए कि भैया 1 घंटे के अंदर मेरे को ये चीज कंप्लीट करनी है तो करनी है, उसके बीच में मुझे किसी का कॉल आता है, किसी का फोन आता है, कुछ और चीजें नोटिफिकेशन देखनी है, वो मुझे नहीं करना. सिंपल सा एक टेक्निक होता है पोमोडोरो टेक्निक, वो भी आप यूज कर सकते हो. तो देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स, बट दोज टेक्निक्स वोंट वर्क यदि आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है. लेकिन आखिर वो क्वेश्चंस क्या है? प्रॉब्लम्स तो है, सबके पास प्रॉब्लम है, मेरे पास भी प्रॉब्लम है कि मेरे लाइफ में तो टेंस ऑफ 15 और 20 ऑफ थिंग्स साइमल्टेनियसली चल रही हैं, ठीक है, बट कैसे उसको हैंडल करना है? कपल ऑफ थिंग्स आती है. एक चीज तो आपको प्रायोरिटी बनानी होती है, सेकंड थिंग उसमें टाइम प्लान बनाना होता है, फिर उसको अलॉट करना होता है कि इतने करने होते हैं. मोटिवेशन मिलता है, किसी ने बताया 2-3 दिन तक आपने कर लिया, इतना सब लोग करते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी कैसे लानी है, दैट इज द चैलेंज. वो चैलेंज लाने के लिए ही एक मैंने नेगेटिव एग्जांपल देता हूँ, शायद मैंने किसी को दिया था फोन पे, अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी. जैसे सुबह सुबह मैं उठता हूँ, रूपाली, लेट्स से मैं सुबह सुबह उठता हूँ और सुबह सुबह उठ के ही किसी से कुछ अपशब्द सुन लिया मैंने और मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया. सो व्हाट विल हैपन इज दैट कि पूरा डे ऐसा लगेगा कि इट विल क्रिएट ए रिपल इफेक्ट, और पूरा दिन भर मेरा ऑकवर्ड सा चेहरा रहेगा, मन रहेगा, राइट? इट हैपेंस विद द नेगेटिव रिजल्ट्स, इजंट इट? सिमिलरली हैपेंस विद द पॉजिटिविटी एज वेल. कंसिस्टेंसी हर चीजों के साथ एक साथ नहीं आती है. कंसिस्टेंसी एक छोटी चीज के साथ आप करो, डिसिप्लिन आप एक छोटी चीज के साथ करो, वो जब एक साथ पार्ट ऑफ लाइफ बनती है, then that creates a ripple effect in every aspect of your life, and then you become that consistent person. That is the secret. हमको सारी चीजों को एक ही साथ कंसिस्टेंट नहीं करना, हमें एक छोटी सी चीज को पकड़ के उसे कंसिस्टेंटली करना है, सो दैट कि वो हैबिट बने, वो डिसिप्लिन वाला फैक्टर आए. एंड वंस दैट इज हमारे ब्रेन में, हमारे हैबिट में, हमारे बिहेवियर में, हमारे कैरेक्टर में इम्पार्ट हो गई है, देन किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, करियर हो, जॉब हो, प्रिपरेशन करना हो, रिलेशनशिप हो, आपकी कुछ और भी हैबिट्स हो, हर हैबिट्स में आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो. बट एटलीस्ट वो छोटा सा थ्रेड को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. जैसे सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, मिलिट्री वाले इतने पर्सन इतने डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं? जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो करके दिखाते हैं, राइट? क्यों? बिकॉज उनकी ट्रेनिंग ही वैसे हुई है. कंसिस्टेंसी पे वो काम करते हैं. डिसिप्लिन, मोटिवेशन तो बहुत है कि भाई मुझे करना है, ये गोल है, मेरा टारगेट है, मोटिवेशन इज देयर, बट इट इज अ डिसिप्लिन दैट कीप्स देम गोइंग. मेरे साथ ऐसा पॉजिटिव चीज क्या रहा कि मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, राइट? तो नवोदय विद्यालय में बचपन से ही हम लोग को सुबह 5 बजे उठाया जाता था, 6-7 साल तक कंटिन्यूसली उठा के रनिंग, एक्सरसाइज, पीटी, सब कुछ टाइम टू टाइम होता था. वो डिसिप्लिन बन चुका था मेरे लाइफ में, एंड मैंने उसको बहुत हम्बली एक्सेप्ट भी किया था. इनफैक्ट जब 10th के बाद मैं लखनऊ गया, वंस आई वेंट देयर, आई फेल्ट दैट गैप कि यार आई एम नॉट रनिंग, आई एम नॉट डूइंग एक्सरसाइज, आई एम नॉट प्लेइंग वॉलीबॉल, आई एम नॉट डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग एट दिस राइट टाइम. That I felt the gap. In fact, because of doing those things consistently in the past 15 or 16 years, I have been able to achieve a lot of things. And that is the ripple effect I am talking about. एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन यदि बनाना होगा, you will take 1 or 2 or 3-4 hours. In fact, वो बढ़िया प्रेजेंटेशन में नहीं बनेगा. बिकॉज मैंने मास्टर्स कर लिया है, उसके अंदर चीजों को समझ लिए, मैं आधे घंटे के अंदर पीपीटी बनाऊंगा, इट विल बी फैंटास्टिक. ठीक है? मल्टीपल अदर थिंग्स, ठीक है, कैंपस के अंदर, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में. सो सी question, right question. What was the right question? The right question is, everyone knows the plan, everyone has the goal. ठीक है, जो गोल डिफाइन नहीं किए हैं वो दोबारा जाके अपने डिफाइन करें, बट देयर आर सम टारगेट्स, राइट? यू हैव अ प्लान, यू हैव द मोटिवेशन. आप यूट्यूब पे गए या फिर अपने दोस्तों से बात भी कर ली, यू हैव द मोटिवेशन, बट व्हाट आर द थिंग्स दैट कीप्स यू गोइंग? और उसी के लिए आपको हेल्प करनी पड़ेगी, वो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन काम करना है. बट अगेन रिमेंबर कि आपको सारी चीजों पे एक ही साथ नहीं करना कि भाई इसको भी सही कर लो, इसको भी सही कर लो, उसको भी सही कर लो, बिकॉज दैट विल अल्टीमेटली क्रिएट योर फ्रस्ट्रेशन. फिर आप 2 स्टेप आगे बढ़ने के बजाय 10 स्टेप पीछे चले जाओगे, राइट? वो आपको नहीं करना. व्हाट यू नीड टू डू इज दैट पिक अप अ पर्टिकुलर थिंग एंड बिल्ड दैट कंसिस्टेंसी. कहीं ना कहीं इफ यू थिंक अबाउट इट,
My target is not to complete that book. Our target here is not to complete that book. Our target is not to finish that book. एक सिंपल सी 200 पेज की बुक को वी रीड इट फॉर 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 महीने तक पढ़ते हैं. Our target goal is to read daily. Our target goal is to become that consistency. It's been more than 90 days. I have never missed a day. यदि मैं ट्रैवल भी करता हूं तो भी मैं ऑडियो क्लिप सुनता रहता हूं और डेली नोट्स बनाता हूं. कभी कभी 1-2 दिन बीच में छूटा लेकिन नेवर, बिकॉज दैट इज द मोमेंटम यू क्रिएट. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. फिजिक्स सब लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है? राइट, लेट्स से पीस ऑफ पेपर, देयर इज अ बम्प देयर, राइट? अब क्या होगा यदि साहिल आया, राइट? साहिल, लेट हेल्प मी विद इट. यदि तुम साहिल धीरे धीरे आ रहे हो और ये भी चढ़ाई होगी, काफी टाइम लगेगा चढ़ने, प्रॉब्ली ऊपर चढ़ते फिर तुम नीचे आ जाओगे, करेक्ट हो? सोम आया, सोम के पास ऑलरेडी देयर इज सम मोमेंटम. क्या यदि बीच में हिंड्रेंस भी है तो भी थोड़ा सा प्रोसेस तो स्लो हुआ, बट अगेन वो रास्ता पार कर गया. यही चीज लाइफ में भी होती है हमारे साथ. सो फाइन, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज दैट कि हैव दैट मोमेंटम. और वो मोमेंटम कैसे आएगा? स्मॉल स्टेप स्टार्ट करो, हैव दैट डिसिप्लिन, हैव दैट कंसिस्टेंसी एंड देन क्रिएट दैट मोमेंटम. ये चीज हमारे लाइफ में भी होती है. अक्सर क्या होता है ना कि हम हमेशा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, एंड कहीं ना कहीं कुछ छोटी बहुत दुख की चीजें भी आ जाती है ना, तो भी हम उसको फेस कर जाते हैं. लेकिन आप हमेशा से सॉबर रहोगे, रोते रहोगे, कुछ करते रहोगे, छोटी सी चीजें भी आ जाएगी ना तो वो बहुत इम्पैक्ट कर देगा कि यार क्या ही हो गया मेरे लाइफ में. नेवर लेट दैट हैपन टू योर लाइफ, ठीक है? सो यू नो द रिपल इफेक्ट ऐसे ही क्रिएट होगा. जो चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये छोटी कंसिस्टेंसी वाली, दैट विल क्रिएट अ रिपल इफेक्ट. So that is the importance. Thank you, Ripali, for sharing your experiences. And definitely everyone shared couple of things. If anyone has any question to anyone, feel free to ask. Som, Sahil, Dipali, Juhi, Ripali. If anyone who you have any question to anyone, feel free to ask. Any questions? General questions? It is. I have given you the vehicle, right? You are the driver. Okay. तुम्हें कितनी फास्ट चलानी है, कितनी स्लो चलानी है, यू आर द ड्राइवर ऑफ द पर्सन, राइट? तो यू ड्राइव इट, ठीक है? अपने पेस पे चलो एंड थोड़ा सा पुश करो अकॉर्डिंगली. सेकंड थिंग व्हाट आई वांट टू डू इज दैट मेक नोट्स और अंडरलाइन करो. सेपरेटली नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बिकॉज ये हेल्प करता है तुरंत फटाक से चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को रिमेंबर मेमोराइज करने के लिए. ओके, कूल. सो सोम, probably any other thing that you would like to share from the book? Any quotes probably that you like, anything that you highlighted? Sir, actually, after I have only read that first chapter, the compound effect action. So it gave that analogy where he gave an example of three persons, Scott, Larry, and Brad. So there he has beautiful because it has remained with me that how he has beautifully explained that one remains neutral for 2 years and doesn't see any effect. The Scott decides to decides to only make very very small changes on a daily basis. But the book explained that for first month it doesn't show any result. For 6 months it doesn't show any result. For 18 months also. Then but after the 30 months it showed the result, and that result was very much drastic. On the other hand, there was another guy who was kind of not working upon himself, and he was also not aware that he was making the uh, uh, negative actions on daily basis, which was also getting compounded, but he wasn't aware of that. So it was affecting his relationship with his wife and in his job also. So everything started shattering for him, and that's what I got to know that some see we all know that implementing positive actions in our life is very much necessary, and we focus on them also. But it is also important at the same time to remove the negative things which we are keep doing in our life. Because we are unaware of those things. Somewhere we can become aware of what we have to do, but we are not aware of what we don't have to do. So doing those things are equally important to like have a very big difference in life. Absolutely. And definitely everyone, I want everyone to keep that example in your mind. It's not only मतलब कि केवल हेल्थ के सेक्टर में ही,
बट जॉब में स्पेशली इन द बिजनेस, जब आप बिजनेस करते हो ना तो ऐसे ही एक्सपोनेंशियली चीजें ग्रो करती है, तो कीप दैट इन माइंड। मतलब वो एक और आगे जाके यू विल बी एबल टू रीड दैट पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ अ मनी जहाँ पे वो पर्टिकुलर अमाउंट देता है एंड देन 1 रुपी का डॉलर भी देता है एंड देन इट कंपाउंडेड डेली फॉर 31 days और सो। इनफैक्ट 29 और Yeah, yeah, yeah. 28th डे भी दैट अमाउंट कम रहता है, एक दो दिन पहले Right. भी वो अमाउंट कम रहता है, ही हैज दैट दिस डाउट कि आई डोंट नो वेदर आई हैव मेड दिस राइट डिसीजन और नॉट, बट उसके बाद मैजिक क्रिएट होती है। So that Correct. is the power of compound effect. See, second aspect that you mentioned very beautifully is that negative effect of compound effect, जो कि नेगेटिव रिजल्ट से आता है। एंड सी होता क्या है, तुमने एक और चीजें बताई कि कैसे कॉन्शियसली हम ट्रेन कर सकते हैं अपने पॉजिटिव एक्शंस को, इनफैक्ट नेगेटिव एक्शंस को भी, लेकिन समटाइम्स अनकॉन्शियसली नेगेटिव एक्शंस भी हो जाती हैं, करेक्ट नो? अब देखिए होता Correct. क्या है, Correct. अपने अपने ब्रेन का दो माइंड है, राइट? एक अपना कॉन्शियस ब्रेन है, एक सबकॉन्शियस पार्ट है। सबकॉन्शियस पार्ट में जो भी हम करते हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली हमने कुछ किया हुआ होता है, वो हमारे जाके अंदर हैबिट बनी हुई है, बिहेवियर बना हुआ है, कैरेक्टर कहीं ना कहीं आया है, दैट्स व्हाई इट इज ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेड। व्हाट इज इन आवर डिसीजंस इन राइट, इनफैक्ट सबकॉन्शियस ब्रेन जो होता है सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है? लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन को राइट फंक्शंस में, राइट डायरेक्शन में काम करने के लिए वी नीड टू गिव इंपॉर्टेंट कॉन्शियस एफर्ट्स एंड इनपुट्स फर्स्ट, एंड वो एफर्ट्स कंसिस्टेंटली अपने को देना पड़ेगा कई सालों तक, सो दैट कि वो जाके इम्पार्ट हो, और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड से ऑटोमेटिकली ऑटो सजेशंस मिलेंगी। थिंक एंड ग्रो रिच में देयर इज देयर ऑटो सजेशन, वो ऑटो सजेशन यहीं से मिलती है। See, होता क्या है ना कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट ब्रेन, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, फीलिंग्स, फेथ, फियर, उसको इम्प्लीमेंट अपने को करना है, अलग अलग स्टोरी से समझना है। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। या डेफिनेटली anyone else, Deepali, you have shared couple of nuggets from the book, chapter number 7, 8th I guess, chapter number 8, 9th I guess, and any other thing that you would like to share, or Juhi or Deepali if you have read the books. If you can go through group description, right, there are also, I have created multiple playlists, playlists in Hindi, playlists in English, as well as there are Google Drive books, राइट? सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो थ्रू दोस प्लेलिस्ट ऑडियो बुक्स, वहां पे आप जाके, जैसे कभी कभी मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आप लेटे हुए हो, राइट, रेस्ट कर रहे हो, ईयरफोन प्लग इन किया और इनपुट ले लिया। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट इनपुट्स, वट एवर यू गिविंग टू योर माइंड। सब कुछ आपकी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो ना, आई एम लिटरली टेलिंग यू, यदि आपको पैसे चाहिए अपनी जिंदगी में, ठीक है, यदि आपको पैसे चाहिए, आप कॉपी के अंदर लिख लीजिए कि प्लेसमेंट के बाद मेरे को लाख रुपए, 2 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। तो डेली उठा के उसको पढ़ लो 5 बार, सुबह उठने के जस्ट बाद और शाम को सोने से जस्ट पहले। मेरे को महीने का 1.5 लाख रुपए चाहिए आफ्टर कैंपस प्लेसमेंट्स, गिवन दैट वो अपॉर्चुनिटी उस तरह की स्ट्रेच होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लोकल कॉलेज में गए या फिर आईएम्स में गए, वहां पे जाके आप बोल रहे हो कि मेरे को 10 लाख का पैकेज पर मंथ, नहीं, 2-3 लाख का पैकेज, जितना फिजिबल है। स्मार्ट गोल्स, राइट, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइमली एंड अकॉर्डिंगली, जो कि स्पेसिफिक होती है। तो यू राइट इट डाउन कि वट एवर द मैक्सिमम पैकेज दैट इज अवेलेबल हियर, यू विल अचीव इट, wrote it down, और उसको तुम डेली पढ़ो। अब एक्चुअली होता क्या है ना, मैजिक कैसे क्रिएट होता है, लेट मी टेल यू। आई वाज ना कि क्या और कैसे करना आप कर ले जाओगे, क्यों करना ये पहले डिसाइड करो। तो आप अल्टीमेट गोल करो, आपने क्यों डिसाइड किया, क्यों करके आपने ड्रीम्स, गोल्स लिख दिया कि मेरे को ये चीज करनी है। वो करने के बाद जब आप बार बार कॉन्शियसली एफर्ट्स दोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड होगा। आप जब सोओगे, जागोगे, किसी से बात करोगे, कुछ भी करोगे, इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू ऑटो सजेशंस to follow in such path which is aligned to your that goal। और यही होती है यूनिवर्स की ताकत। जिस चीज को आप जिद्दोजहद से चाहोगे, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की सारी ताकत मिलेगी। वो यूनिवर्स की सारी ताकत है क्या? आपका सबकॉन्शियस माइंड। आज के 5000 साल पहले भगवत गीता में भी यही बात कही गई है, और आज की दुनिया में भी यही बात कही जा रही है। देयर इज नो डिफरेंस, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अस, मैं कितना इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। देयर इज नथिंग वेरिएबल, ओनली वेरिएबल इज मी, माई ब्रेन, माई माइंड, माई सेल्फ। Very simple thing, beautifully. Thank you, sir. Yeah, Dipali. Yes, sir. Yeah, so please. Okay, let us speak. Yeah, just make it quick. As you said that obviously we just want to be consistent to maintain that perseverance, but the thing is we are not robot, we are all human beings. In the last, I started from the first session, so I am little habitual of the that I the change in my habit is I started to reading any book that you suggest, right? So this is something which is like nahi karo to it's like incomplete. I feel at the end of the day I feel there's something which is incomplete.
Though I started number of other activities in the starting, like doing exercise and all other stuff also. But obviously, in the starting, we all like 2 or 3 days very much motivated, but we just distract from other stuff also. But this is something which I inculcated. Like this is something which I have to do on daily basis. So obviously, I just hope in the coming days, this activities plus other activities which are going to be helpful in my coming days, I'm going to have this as a daily habit. So Absolutely. this is Absolutely. This itself will create a ripple effect. You will see it. ठीक है, this itself, because ये behavior को change करता है, आपके thought process को change करता है. Right. Thank you. Deepali, any other quotes that you would like to share from Think and Grow Rich? I have one, I think from chapter 6. The quote: success required no explanation, failure permits no protection. So this is something which I realized from this world, because obviously when we success or with the other person, everyone is like, you are doing so well, you are so persistent, or you are so like focused, but they are not giving that much focus with the person, that the one who is not going to achieve that target that he or she set. But the thing is, it doesn't mean that he or she doesn't work that much. But the thing is, there are some other factors which may be that much weightage to that guy who succeed. So this is a problem which I think we as a society can see easily. Right. So this quote Absolutely. And let us start with ourselves, because we understand no कि किसी की भी सक्सेस के पीछे कितनी फेलियर्स होती है, कितनी प्रॉब्लम्स होती है, कितनी दिन रात की मेहनत होती है, कितनी कठिन रास्ते होते हैं, फाइनेंशियल चीजें होती हैं, फैमिलीज के अंदर इश्यूज होती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीजें हो रही होती है, फिर भी आप आगे बढ़ते रहते हो. और जब सक्सेस मिलता है, डेफिनेटली एवरीवन इज सब लोग सलाम करते हैं राइजिंग स्टार को, राइट, राइजिंग सन को सब लोग सलाम करते हैं. बट अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके पीछे की स्टोरी भी कुछ होगी, एंड उसके साथ हमको रेजोनेट करना है, एंड उसको सोच के हमको सामने वाले को अप्रिशिएट करना है. तो डेफिनेटली लेट्स स्टार्ट विद अस. हम ही सोसाइटी है, राइट? लेट्स बिल्ड आवर ओन सोसाइटी. We'll start it. Okay. Thank you, Dipali, for sharing. Yeah, Juhi, Dipali, if you have read any part of the book or anything that you would like to share, feel free to share. Otherwise, we can just wrap it up. We have just 5 minutes or 10 minutes or so. Anything? Juhi? All good? I think the weather is not good here. So Sorry, Bhaiya, I did not read that book, but I have something which I want to share with all Yes, of you, please. which I read in my B.Ed books. Bhaiya, that is in Hindi. ज्ञान के स्रोत मीन्स सोर्सेस ऑफ नॉलेज. तो अगर हम कहें तो ज्ञान जो है वहाँ यहाँ पे बताया गया है कि ज्ञान के 4 मौलिक स्रोत हैं. मीन्स नॉलेज के 4 फंडामेंटल सोर्सेस हैं. पहला है सेंसरी एक्सपीरियंस, मतलब इंद्रिय अनुभव. दूसरा है टेस्टिमोनी मीन्स साक्ष्य. तीसरा है तर्क बुद्धि मीन्स रीजन. और चौथा है अंतः प्रज्ञा मीन्स इंट्यूशन. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तो मतलब ज्ञान के स्रोत मतलब किस तरह हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज को. तो इंद्रिय अनुभव मतलब जैसे नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जो भी इस वर्ल्ड में, संसार में जितनी चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं, उन वस्तुओं के संपर्क में आते हैं. जैसे हम कोई चीज़ पढ़ाई करते हैं तो हमको वो ज्ञान मिलता है. ठीक है, तो इंद्रिय अनुभव मतलब ये हुआ कि हम उसको अपने इंद्रियों के द्वारा जब हम लोग अनुभव करते हैं, फिर उसको अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग उस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं. जैसे हम कोई टॉपिक पढ़े प्लांट के बारे में, या फिर जूलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें, तो हमको वो चीज़ का ज्ञान, हमको उस चीज़ के बारे में ज्ञान की प्राप्ति हुई. फिर दूसरा है साक्ष्य. साक्ष्य मीन्स ये हुआ टेस्टिमोनी. जैसे जब हम दूसरों के अनुभव तथा निरीक्षण पर आधारित ज्ञान को मान्यता देते हैं तो उसे हम साक्ष्य कहते हैं. मीन्स एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो भी साक्ष्य, जैसे न्यूटन्स का लॉ है, बर्नौली थ्योरम है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि फिजिक्स में है. तो इस तरह जो साक्ष्य है, अगर हम उन साक्ष्यों को जब हम पढ़ते हैं तो हमको नॉलेज की प्राप्ति होती है. ठीक है, तो स्रोत यहाँ पे 2 हुआ, एक इंद्रिय अनुभव और दूसरा साक्ष्य. तीसरा है तर्क बुद्धि मीन्स तर्क बुद्धि तथा तर्क बुद्धिवाद मीन्स रीजन एंड रेशनलिज्म. तो उसमें ये है कि जो तर्क है, मतलब जो भी हम लोग तर्क करते हैं, ठीक है, तो वो एक मानसिक प्रक्रिया, बट नेचुरल वो मानसिक प्रक्रिया, हम सोचते हैं, हम थिंक करते हैं उसको मेंटली. ठीक है, और हमारा बहुत कुछ ज्ञान तर्क पर ही आधारित होता है. मीन्स अगर हम मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या फिर अगर हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी पढ़ रहे हैं, या फिर हम किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप हैं भैया, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करते हैं तो आप तमाम तरीके के मॉडल्स बनाते हैं, या फिर कोई
सिविल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो हर काम जो भी हम जिस सेक्टर में करते हैं उसमें हमको तर्क करते हैं, उस चीज़ के बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ठीक है। तो जो तर्क है वो एक मानसिक प्रक्रिया है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। तो मतलब उसको हम मेंटली सोचते हैं, उसके बारे में ध्यान लगाते हैं, उसके बाद फिर उसके बारे में सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, या फिर ये चीज़ हम इसके बारे में और कर सकते हैं, या फिर नहीं कर सकते तो उसको हटा देते हैं। और फिर जो हमें लगता है कि हाँ हाँ ये चीज़ें सही है, तो फिर हम उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसी को कहते हैं रीज़न। मतलब रीज़न हमको मिलता है कि हाँ ये रीज़न है, और फिर उस पर रेशनलिस्ट उस पर हम काम करते हैं, और फिर उस चीज़ उस तरह हमको ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर लास्ट में उसमें है भैया कि अंतः प्रज्ञा तथा अंतः प्रज्ञावाद, मतलब इंट्यूशन एंड इंट्यूशनिज्म, यह भी ज्ञान का एक प्रधान स्रोत है। मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंट्यूशन और इंट्यूशनिज्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतः प्रज्ञा से हमारा तात्पर्य है किसी तथ्य को अपने मन में पा जाना। मतलब अंतः प्रज्ञा मतलब हम सोच लिए, जैसे हम सोच लिए कि हमको इन फ्यूचर प्रोफेसर बनना है, या फिर हमको रिसर्च करना है, तो हम अपने मन में सोचे कि हाँ हमको ये चीज़ करना है, तो एक हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि हमको ये चीज़ पाना है, ठीक है। तो ये हुआ अंतः प्रज्ञा, और इसके लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के ज्ञान का एकमात्र प्रमाण यह है कि हमें उसकी निश्चितता तथा वैधता में संदेह नहीं होता है। हमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए कि हम इसको नहीं प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ होना चाहिए कि हाँ हम इस चीज़ को पा लेंगे। उसके बाद है हमारा उस ज्ञान में पूर्ण विश्वास हो जाता है। तो ये है हुआ अंतः प्रज्ञा मीन्स इंट्यूशन एंड इंट्यूशनिज्म। तो यही 4 स्रोत है, मतलब सोर्सेस ऑफ नॉलेज। पहला सेंसरी एक्सपीरियंस से हम प्राप्त करें, दूसरा टेस्टिमोनी से प्राप्त करें, तीसरा रीजन होना चाहिए कि हाँ हमें वो चीज़ पाना है। अगर हमें कोई चीज़ रिसर्च करना है, या फिर अगर हमें बैंकिंग सेक्टर में अच्छा करना है, या फिर अगर रेवेन्यू ऑफिसर बनना है, फिर कुछ भी हमें करना है, तो हाँ उसका रीज़न होना चाहिए। और फिर हम उस चीज़ को सोचते हैं, तर्क करते हैं, फिर उसको पाते हैं। और फिर इंट्यूशन होना चाहिए। उस इंट्यूशन से भी अगर हम कोई चीज़ मन में सोचते हैं कि हमें ये चीज़ करना है, तो उस इंट्यूशन से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये 4 सोर्सेस यहाँ पे बताया गया है नॉलेज के लिए, मतलब मेरे बीएड की बुक में। थैंक बहुत यू। फैंटास्टिक। मतलब तुमने बहुत ही फैंटास्टिक चीज बोली। आई वांट एवरीवन टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट पुट अ वेरी ह्यूज राउंड ऑफ क्लैप फॉर जूही। आई मीन वाओ, amazing, very good. Keep it up, Jay, keep it up. See, you have shared, in fact you have summarized every aspect of knowledge sharing. In fact लास्ट वाले एस्पेक्ट में मैं शेयर भी करना चाहूंगा कि जो रामानुजन जी से जो नॉलेज मिलती थी वो कहीं ना कहीं उसी एस्पेक्ट से मिलती थी, राइट? एंड ब्यूटीफुली यू हैव एक्सप्लेन्ड इट। So thank you, Jui, very fantastic. Thank you भैया, थैंक यू Right. to all of you for appreciation, for appreciating me. Absolutely. किसी जैसे जूही ने अभी शेयर किया, राइट, कि 4 तरह से नॉलेज। किसी को यदि पर्टिकुलर क्विक क्वेश्चन है, आई कैन टेक वन क्विक क्वेश्चन एंड देन वी कैन रैप अप दिस क्वेश्चन। एनीवन, एनी क्विक क्वेश्चन, या फिर इफ यू वांट टू ऐड पर्टिकुलर थिंग, एनी एग्जांपल दैट यू वुड लाइक टू ऐड, सोम और साहिल या रूपाली, इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन जूही's comment. Okay, so I'll go once, I'll go twice. Okay, all right. So cool. Then we can wrap up this call. It's already been approximately 1 hour or so. Okay. So yeah, thank you guys. Thank you guys for joining again. And let me ask this question. कि अभी तक कितने chapters तक किए हैं? I think 8 chapter, right? Deepali? Yes. 8, 9. Okay. So let me repeat that last week target again, and then let me stretch this to 10 chapters, right? 10, 11 chapters. And थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ना भी शुरू करते हैं, ठीक है? And जैसे ये 2-3 हफ्ते, and then we can take forward. So yeah, thank you guys. Thank you. You guys were amazing. You guys are fantastic. सबने अपने बारे में कुछ शेयर किया। Dupali and Juhi, definitely they joined for the very first time after a long time, and definitely everyone here, Som, Sahil, Deepali, Juhi, Rupali, everyone here added some value. हम लोग अपने अलग अलग डोमेन से हैं, बट ये जो वैल्यू एडिशन है एक दूसरे के लिए, इसी वैल्यू एडिशन से हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, and that is fantastic. Absolutely, many congratulations, and definitely great things are there for you in every aspect of life, and I'm always here for you. Okay, with that, wish you very good luck, very fantastic week ahead. Okay guys, bye bye, take care. Bye. Thank you. Yeah. Bye bye. Thank you.